हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो अभी इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑयल सीड्स को। ठीक है। ऑयल सीड आर द मेन सोर्स ऑफ फैट इन इंडियन फूड। ऑयल सीड आर द मेन सोर्स ऑफ फैट इन इंडियन फूड। मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स आर तोरिया, mustard, sesame, till, linseed, castor seed, sunflower, soyabean, etc. Oilseed are the main source of fat in Indian food. Major oilseed crops are toria, mustard, sesame, till, linseed, castor seed, sunflower, soybean, etc. Yellow revolution. Yellow revolution is associated with the increase in the production of oilseed crops. Yellow revolution is associated with the increase in the production of oilseed production. Oil and oil cake obtained from oilseed is used in varnish, lubricant, candle, soap, fertilizer, aromatic substances, etc. Oil and oil cake obtained from oilseed is used in varnish, lubricant, candle, soap, fertilizer, सोप में, फर्टिलाइज़र में, लुब्रिकेंट में, वार्निश में, फर्टिलाइज़र, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, इन सभी में जो ऑयल और ऑयल केक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि किससे प्राप्त होता है, जो हमें ऑब्टेन होता है ऑयल सीड से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 डेटा, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2020-21 fourth advance estimates has been 36.1 million tons. The largest producer of total oilseeds in India is Rajasthan, followed by Maharashtra and Madhya Pradesh. Peanut is a major oilseed crop. Peanut is a major oilseed crop. Peanut are a good source of vegetated protein. Peanut is a tropical crop. 50 to 80 centimeter of rainfall and 50 degree centigrade to 15 degree centigrade to 25 degree centigrade of temperature is sufficient for growing of peanut crop. ठीक है, जो पीनट क्रॉप है, पीनट इज़ ए मेजर ऑयल सीड क्रॉप. पीनट आर ए गुड सोर्स ऑफ वेजिटेटेड प्रोटीन. पीनट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप. 50 to 80 centimeter of rainfall and 15 degree centigrade to 25 degree centigrade of temperature is sufficient for growing this crop. Peanut is also known as cashew of poor. Peanut is also known as cashew of poor. ठीक है। नेक्स्ट है पैगिंग. पैगिंग इज़ ए यूज़फुल फिनोमेनन इन ग्राउंडनट. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पैगिंग का जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ग्राउंडनट. पैगिंग इज़ ए यूज़फुल फिनोमेनन इन ग्राउंडनट. इन पैगिंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द पीस ऑफ द फेडेड फ्लावर come out and enter the soil which grows quite close to the taproot. Pegging is a useful phenomenon in groundnut. In pegging, after fertilization, the peas of the faded flower come out and enter the soil which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow and mature into a peanut. For the cultivation of peanut, the soil must have the enrichment of the gypsum. Pegging is a useful phenomenon in groundnut. In pegging, after fertilization, the peas of the faded flower come out and enter the soil which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow and mature into a peanut. For the cultivation of peanut, the soil must have the enrichment of the gypsum. Next है according to 2020-21 fourth advance estimate figure, the three leading groundnut producing states in India are: number first is Gujarat 4.13 million tons, second is Rajasthan 1.93 million tons, third is Tamil Nadu 0.94 million tons. According to 2020-21 fourth advance estimate
Figure the three leading groundnut producing states in India are फर्स्ट है ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में गुजरात 4.13 मिलियन टन। सेकंड नंबर है राजस्थान स्टेट का ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में 1.93 मिलियन टन्स। और थर्ड नंबर है तमिलनाडु का ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में 0.94 मिलियन टन। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एडिशन टू द फूड ऑयल। favorable condition for soybean cultivation are temperature ranging between 15 to 25 degree centigrade, average annual rainfall of 40 to 60 centimeter, and loamy soil with a pH ranging between 6 to 6.5. Soybean is a good source of protein in addition to the food oil. Favorable condition for soybean cultivation are temperature ranging between 15 to 25 degree centigrade, average annual rainfall of 40 to 60 centimeter, and loamy soil with a pH ranging between 6 to 6.5. Soybean is cultivated as kharif crop, generally sown in June and harvested in October. Soybean is cultivated as kharif crop, generally sown in June and harvested in October. Soybean crop requires irrigation 3 to 4 times. Soybean crop requires irrigation 3 to 4 times. According to data SOPA for SOPA for 2021 in India 5.56 million hectare area of Madhya Pradesh is cropped under soybean, which is 51.23% of total cropping area of soybean in India. According to data SOPA for 2021 in India 5.56 million hectare area of Madhya Pradesh is cropped under soybean, which is 51.23% of total cropping area of soybean in India. The three leading producer states of soybean as per Economic Survey 2021-2022, the year 2020-21 fourth advance estimates are number 1 Maharashtra 6.20 million tons, number 2 मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन्स, और उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 राजस्थान 1.09 मिलियन टन्स। क्या पढ़ा हमने इसमें? द थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ सोयाबीन एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 इन द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स आर क्या है? जो ऐसे स्टेट्स जो कि क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन हैं हमारी कंट्री में। तो 2021 में सबसे जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है सोयाबीन का, वो है महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे है सोयाबीन के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन। सेकंड नंबर पे है सोयाबीन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करता है सोयाबीन का। और थर्ड नंबर पर है सोयाबीन प्रोड्यूसर स्टेट में राजस्थान 1.09 मिलियन टन्स का जो सोयाबीन है उसका प्रोडक्शन करता है। मस्टर्ड इज़ ऑल्सो ए मेजर ऑयल सीड क्रॉप। मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड इज़ ऑल्सो ए मेजर ऑयल सीड क्रॉप। Mustard is a rabi crop. For the cultivation of mustard, the temperature ranging between 15 to 25 degree centigrade and the annual rainfall of 75 to 100 centimeter is required. अब पढ़ रहे हैं मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड इज़ ऑल्सो ए मेजर ऑयल सीड क्रॉप। मस्टर्ड इज़ ए रबी क्रॉप। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मस्टर्ड द टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 15 to 25 degree centigrade and an annual rainfall of 75 to 100 centimeter is required. It is sown in the month of October-November and harvested in the month of February-March. ठीक है, मस्टर्ड के बारे में है ये कि मस्टर्ड इज सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर-नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च। नेक्स्ट है According to Economic Survey 2021-2022 data in the year 2020-21 fourth advance estimates, Rajasthan is first in rapeseeds and mustard production in India, followed by Madhya Pradesh, second rank है। हरियाणा थर्ड प्लेस पे है। द मेजर वैरायटीज़ ऑफ मस्टर्ड्स आर पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है? मस्टर्ड की वैरायटी है। ठीक है, पूसा, जय किसान और वरुणा
ये सभी मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं। द मेजर वैरायटीज़ ऑफ मस्टर्ड आर पूसा बोल्ड, पूषा, जय किसान एंड वरुणा। पीताम्बरी, पीताम्बरी इज़ ए स्पीसीज़ ऑफ येलो मस्टर्ड। ठीक है, पीताम्बरी किसकी स्पीस है? येलो मस्टर्ड की स्पीसीज़ है। पीताम्बरी इज़ ए स्पीसीज़ ऑफ येलो मस्टर्ड। RYSK 0502। ठीक है, पीताम्बरी इज़ ए स्पीसीज़ ऑफ येलो मस्टर्ड, RYSK 0502। तो ये हमने पढ़ा ऑयल सीड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑयल सीड क्रॉप। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या है? मसूर, लोबिया, बरसीम और सनफ्लावर में से कौन सा ऑयल सीड क्रॉप है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑयल सीड क्रॉप है सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर क्या है? ऑयल सीड क्रॉप है। इसके बाद नेक्स्ट है मेन ऑयल सीड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इसीलिए क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेन ऑयल सीड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर। ये सभी क्या हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड से। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एंड ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ फिश और फिशरीज से। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, वाइट रिवॉल्यूशन इज related to the production of milk and the blue revolution is related to the production of fish or fisheries. Next है क्वेश्चन नंबर 3, येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, अभी हमने पढ़ा येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ ऑयल सीड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू growing of crops entirely under rain feed condition. Groundnut is the most suitable crop for dryland farming. It is a tropical plant, requires a long and warm growing season. It grows well in area, receiving 50 to 125 centimeter of well distributed rainfall during growing season. Dryland farming is a type of dryland agriculture which is suitable for cultivation of crops in areas receiving rainfall above 75 centimeter. क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में? विच इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स entirely under rain feed condition. Groundnut is the most suitable crop for dryland farming. Groundnut is a tropical plant. Groundnut is a tropical plant. Requires a long and warm growing season. Groundnut grows well in areas receiving 50 to 125 centimeter of well distributed rainfall during growing season. Dryland farming is a type of dryland agriculture which is suitable for the cultivation of crops in areas receiving rainfall above 75 centimeter. Next है क्वेश्चन नंबर 6, पैगिंग इज ए यूजफुल फिनोमेनन इन। इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट। पैगिंग इज ए यूजफुल फिनोमेनन इन ग्राउंडनट। पैगिंग इज ए यूजफुल फिनोमेनन इन ग्राउंडनट। इन पैगिंग, after fertilization, the pegs of the faded flower come out and enter the soil, which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow and mature into a peanut. Pegging is a useful phenomenon in groundnut. Pegging is a useful phenomenon in groundnut.
In pegging, after fertilization, the pegs of the faded flower come out and enter the soil, which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow and mature into a peanut. तो पैगिंग किस में होने वाला फिनोमेना है? पैगिंग इज़ ए यूजफुल फिनोमेनन इन ग्राउंडनट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश. ठीक है, लेकिन ये क्या है? पहले का डेटा है. लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-2022 फॉर द ईयर 2020-21, तो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है, 2020-21 के लिए, तो 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन इन इंडिया आर. फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र. ठीक है, सोयाबीन के प्रोडक्शन में है. लीडिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन में जो लीडिंग स्टेट्स हैं, उसमें पहला नंबर है महाराष्ट्र का. 6.20 मिलियन टन्स का सोयाबीन प्रोडक्शन होता है. सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश का. मध्य प्रदेश में 4.61 मिलियन टन्स का क्या होता है? सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है. थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान. 1.09 मिलियन टन्स का सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में. 10 महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसर इन इंडिया. ठीक है, हम क्या है रीसेंट का डेटा अपना देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 फॉर ईयर 2020-21, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन इन इंडिया आर. फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन. सेकंड नंबर पर है किस चीज़ के प्रोडक्शन में? सोयाबीन के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र. सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश. थर्ड नंबर पे है राजस्थान. ठीक है, सेकंड नंबर पे है सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश. 4.61 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का मध्य प्रदेश में. राजस्थान है थर्ड नंबर पे, और राजस्थान में सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है 1.09 मिलियन टन्स का, जो कि थर्ड नंबर पे है कंट्री में. ठीक है, 10 महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसर इन इंडिया. और ये कितना सोयाबीन प्रोड्यूस करता है? 6.20 मिलियन टन. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन महाराष्ट्र. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया. तो अभी हमने देखा कि सबसे फर्स्ट कौन होगा लीडिंग प्रोड्यूसर में? सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र. लेकिन यहाँ क्या है, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया है. तो महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर किसका था? महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश. ठीक है,